Okay, so till yesterday we covered management plane, control plane, data plane. I hope that you don't have any questions on that part, because today we are going to cover orchestration plane and what it is about. Okay, so the orchestration plane is a new concept in SD-WAN. So in traditional network there was no such thing called as vBond. So this is a new concept. Okay, and how it helps. So yesterday I told you that there could be different form factors as a VH. We could have hardware VH. Okay, so in hardware I told there could be V1000 or V2000. Okay, depending on the like where exactly you want to consume it. If you want to consume it in data center, then you will go with higher form factor device V1000, and if you want to consume in branch, then you will go with V1000. Okay, then I told you that there is an option, like if some customers they are still using ISR, so they can keep continuing using ISR. They have to upgrade with the SD-WAN compliant iOS, and they can keep using the ISR. But again, in ISR also there were only few models which I explained. So ISR and ASR also I explained. And then third was like if we want to go ahead with virtual form factor, then also we can use virtual VH devices. So there were three different type of like devices we discussed yesterday. Okay. Now, so how, what is the role of vBond in that case? Okay. So vBond is another virtual appliance. So I told you that we are having vManage and vSmart, which sits in cloud. Similarly, vBond is also a component which is software component. It would have an image and it would sit in the cloud again. Okay. Now, what is the role of vBond here? The role of vBond is again. Uh, so as I told that vBond would be there in the cloud, so it would have one IP address. Okay. So in because vBond is mostly is kept in the cloud services. It can kept it in on-prem as well, but mostly it is kept on cloud. So what happens that it would have one public IP address. Okay. Okay. Now what will happen that whenever you will bring your device up, your VH, any kind of, whether it is hardware or it is ISR device or whether it is virtual, first this device will contact the vBond. Okay, now how it will contact? So every device has something called as system wide configuration. Okay, now what is the system wide configuration? System wide configuration is about the configuration of that device itself. So what comes under system wide configuration? System wide configuration, we will add what is the system IP of the device. Okay, so system IP, just think in this way that system IP is as similar as a router ID in case of BGP and something like that, right? So like router ID we use in case of OSPF as well as BGP. So we configure manual router ID on the router. Okay, so system IP also think in the same way that it would be kind of router ID of the device. Okay, I think. Wait. Actually, I today I don't have access because I am also joined as. You can just type your questions because I don't have the host access today. So let me ask if we can.
Okay. So, but if you have any question, you can type it until Atul returns. I will just continue. Okay. So in system IP, what do we have? So system IP, I already told you that it is kind of router ID. Then we would have another thing is called as site ID. Okay. Now site ID is a kind of that which branch it belongs to. Okay. So there could, as I told, that there could be different branches. There could be thousands of branches, right? So you have to identify that what is that branch. So each unique branch would have a unique site ID. Okay, and in that branch there could be two V edges as well. So both the V edges would have the same site ID. Okay, site ID. Now, system IP, site ID. Then we would have something called as org ID. Yeah, org name. Okay, now org name would be unique. Okay, so how it happens that when you will you want to deploy your like uh, uh, SD-WAN for your network, so you will purchase license from Cisco, right? So Cisco will at the time of the purchase, whether it is physical VH devices or it is software one like virtual one, or whether it is you are having ISR routers, Cisco will ask you that how many devices you would require. So yesterday Atul sir showed you, right, that if we are ordering 10 devices, then you will get for 10 devices you will see those devices there. Okay, so and Atul sir in his profile has already added all the details, right? What would be the organization and all the stuff. So what happens that we have to provide this detailed organization name to Cisco once we would be ordering the devices. So what will happen that Cisco will be, will use this device to make this organization name to make those devices unique. I told you, right? In SD-WAN, there is a concept that if you are ordering some devices, those would be unique for your organization. Only your organization can consume those devices. If that hardware device gets stolen, then and if you want to use it in some other organization, it will never authenticate. Okay, so that's why organization name is unique. Then you would also specify the vBond IP. Okay, so you will give vBond IP. So consider our vBond here is, which we have kept in cloud, is 3.1.1.1. Just for example, I've taken this IP. So you will give here 3.1.1.1. Okay, so this would be the system wide configuration of any VH. Okay, so what happened that once you have added this system wide configuration, as soon as you power on the device, this device knows, okay, where it has to go, because it knows what is the org name and what is the vBond. So as soon as it knows the vBond IP, it will via internet circuit, right? So we would have internet where this. So as soon as we will connect this to internet circuit and bring up the device will directly reach to vBond. Okay. Now on vBond, so in on vBond, this device will get authenticated. Okay, so this vBond would have the details of all the available hardware. So consider while you are setting up the site, you have ordered 1,000 devices to Cisco. Okay, so what Cisco will do, Cisco will ask you org name, org ID or whatever, and it will deliver those devices with this details, this org details. Okay, so what will happen that then Cisco has one portal which is known as JATTP. So there are two different portals, JATTP and PNP, and these are linked with Cisco Smart account. Okay, so yesterday Atul sir showed you, right, there is a smart account. So these portals, they are linked with a smart account. Okay, so what will happen that on this portal, when we will log into JATTP or PNP portal, you would be able to download the one Excel sheet which would have the information of all these 1,000 devices. Okay,
So like there would be chassis ID. Okay, like what is the chassis, because each device would have unique chassis ID, right? So for all 1,000 devices, there would be chassis ID listed in that Excel sheet or CSV. And for each chassis ID, there would be a serial number. Okay. Or if it is a virtual device, there would be one time OTP. Okay. So this would help us uh, uh, to authenticate the device. I will tell you like how it will happen. So what we will do, we will download this sheet from this portal, JTP or PNP portal, and we will just upload this on vManage. Okay, we will upload this sheet on vManage. Now vManage would have all these details of 1,000 devices. Then from vManage will push this device list to vBond. Okay. Now what will happen, that as soon as our device which is coming up, it will come up and it will reach the vBond. Now vBond would already know what is the serial number of device and what is the organization. Okay. So since vBond knows about its chassis ID and its serial number, it will just authenticate the device. As soon as the device is authenticated, vBond will provide the IP address of vManage and vSmart to VH. Okay. Until and unless device is not authenticated by vBond, device will not get the IP addresses of vManage or vSmart. Okay. So it is just like that, that you just want to join some college. You want to join some college or you want to join some company, and first day you are going. Okay. So they will ask you some documents, right? They will ask you share your Aadhaar ID and share the email ID, the communication you got from company. So that is the role vBond is playing here. So vBond would have the list of all candidates they have hired. Like in the case that we are having Prinal, we are having Surabjit, Shahid, and Mustafa. So like these four people we have hired in our company, for example. So vBond would have the details. What is so there you would also have some unique employee ID. So just consider that similar to the serial number of the devices, and then you would have you would got some email communication like that. So when you will come to the company, on the gate itself there would be a security guard who will collect all this information. Once they like you share all the information and vBond understood, okay, you are the valid device, it will then share the vManage and vSmart IPs to the VH devices. So considering this way, that then guard will tell you, okay, which HR to meet or like which person to meet then in the company. Okay. It is as similar as, so once new device is now authenticated by vBond, it will get the vManage IP and vSmart IP. So as soon as it gets the vManage IP, okay, I think yeah, please go ahead. Okay. Okay. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि डिवाइस, हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये जो वी बॉन्ड है एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, जो कि आपकी डिटेल्स मांग, जब आप डिवाइस पहली बार आप आ रही है तो वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा कि इसकी जो चेसिस आईडी है वो वैलिड है या नहीं, उसका जो सीरियल नंबर है वो मेरे पास जो वैलिड डिवाइसेस हैं वो डिवाइस है या नहीं। तो जैसे ही उसने सीरियल नंबर और चेसिस आईडी वेरीफाई कर लिया, उसके बाद जो है वो आईपी दे देगा वी मैनेज का और वी स्मार्ट का, क्योंकि इसके पास तो सारे वी मैनेज का आईपी भी रहेगा और वी स्मार्ट का भी आईपी रहेगा। तो जैसे ये आईपी देगा वी मैनेज का और वी स्मार्ट का, जो डिवाइस है उनके साथ टनल फॉर्म कर लेगी। और इस तरीके से जो है वी मैनेज क्या करेगा, आपकी डिवाइस के लिए जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करी है वो पुश कर देगा आपकी डिवाइस के ऊपर। करेक्ट। तो इस तरीके से आपकी डिवाइस ज्वाइन कर लेगी लाइक एज दी वैन नेटवर्क। ओके। लेकिन अगर ये ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है तो उसके बाद आपकी डिवाइस को वी मैनेज का और वी स्मार्ट का आईपी नहीं मिलेगा, तो वो कभी नेटवर्क ज्वाइन कर ही नहीं पाएगी। तो इस तरह आप देख सकते हो कि कितना सिक्योर्ड है, कोई भी रैंडम डिवाइस आकर के जो है इसको ज्वाइन नहीं कर सकती। वेरिफिकेशन मींस लैब में आप बोल रहे हो क्या सर? भी
एक मिनट, मैं इनको बोलता हूँ जरा, मेरे को अनम्यूट करने के लिए, मतलब मुझे होस्ट बनाने के लिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, हेलो। Yes, sir. Actually, I want to ask, sir, if everybody is comfortable in Hindi, so that we can proceed. If everybody is comfortable. ओके, ठीक है, मैंने आप लोगों को अनम्यूट कर दिया जैसे ही। हाँ जी बिल्कुल सही है, आप ठीक है। क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। नहीं एक्चुअली कुछ पॉइंट्स थे, जैसे आप यू सेड दैट के ऑल द डिटेल्स इन एक्सेल शीट, तो दैट इज अ प्लानिंग डेटाबेस, राइट? या तो जैसे कल अतुल जी दिखा रहे थे ना कि हम लोगों को 10 डिवाइस उन लोगों ने ये किया, ऑनबोर्ड किया, ठीक है। वो डिवाइस जो है आप वहां से उस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में। ओके ओके। तो उस शीट में क्या होगा कि वो डिवाइस का, हर डिवाइस का एक चेसिस आईडी रहता है, राइट। तो उस डिवाइस का, अब ये वर्चुअल डिवाइसेस है तो इसमें चेसिस आईडी रहेगा और एक ओटीपी रहेगा। ओके, ओटीपी फोन पे आएगा, मैं समझ गया। नहीं, फोन पे नहीं आएगा, वो मेल पे आएगा, सॉरी। नहीं, सुनिए, वो जो चेसिस आईडी रहेगा वो आपको आप क्या करोगे, जब वो ये जो एक्सेल शीट है इसको अपलोड करोगे वी मैनेज में, तो उसके बाद एक आपको ऑप्शन आएगा उस डिवाइस के सामने जाकर के एक बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करने का, ठीक है। तो जब आप ये बूटस्ट्रैप कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करोगे, यहाँ पे आपको वो ओटीपी दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है। फिर जब वो ओटीपी, जब आप वो ओटीपी दिख जाएगा तो आप क्या करोगे, उस डिवाइस के सीएलआई पे जाओगे, वीएच के सीएलआई पे। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। उज्जवल भाई, आप ना वो पेन लेके आओ। माउस से होता नहीं है, माउस से होता नहीं है। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन है? अभी आगे चले या फिर कुछ और क्वेश्चंस हैं किसी के भी? वेरिफिकेशन का मैं पूछ रहा था, जब वेरिफिकेशन वी बॉन्ड करता है किसी न्यू नोड का, तो वो लैब में हम देख सकते हैं, जैसे कि वीएज, लाइक वीएज आ रहा है या देखेंगे ना, वी जैसे स्मार्ट आ रहा है। हाँ देखेंगे ना। ओके, बस यही है मेरे। फर्दर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं आगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इसके अलावा, वरना नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं। बट ये आपको ये समझ में आ गया ना कि वी बॉन्ड का रोल क्या बेसिकली, करेक्ट? हाँ, ऑथेंटिकेशन बेसिकली। ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो आपको वी मैनेज और वी स्मार्ट का आईपी देता है, ताकि आप रीच कर सको और अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन है उस डिवाइस की वो वहां से। वी बॉन्ड का आईपी वीएज में भी डलेगा क्या? हाँ, वीएच में भी डलेगा, तभी वीएच पूछेगा। बाकी अदर डिवाइस में तो पता लग गया था, उस दिन कॉन्फ़िगरेशन भी हो चुकी थी वी मैनेजर में और वी स्मार्ट में। वी एज का अभी कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई मैं पूछ रहा था। वी एज में वो हर डिवाइस पे रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके।
हाँ, लेकिन एक डिफरेंस ये रहेगा कि जब वी एज का वी बॉन्ड के साथ काम खत्म हो जाएगा, मतलब जब उसको सिंक अप हो जाएगा। वी मैनेज और वी स्मार्ट की, तो वो जो टनल बनाता है वी बॉन्ड से उसको ब्रेक कर देगा, एफिमेरल रहती है वो टनल। ओके तो इसलिए कि जैसे आप कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से एक बार काम खत्म हो गया तो अभी कभी फ्यूचर में उसके पास नहीं जाते, नहीं। तो ऐसा ही है फिर, मतलब अगर आपकी टनल डाउन चली गई वापस से, आपकी कनेक्शन डाउन चला गया और फिर से आप आता है, तभी वी बॉन्ड के पास जाओगे दूसरी बार। तो कहने का मतलब ये वी एच का लिंक अगर अप एंड रनिंग है तो फिर वो वी बॉन्ड के पास नहीं जाता, बट उसमें भी एक टाइमर रहता है सिंक करने का। हाँ, वो आप बाय डिफॉल्ट 12 आवर्स है, आप बढ़ा भी सकते हो, राइट? हाँ, ठीक। एक और एक लास्ट क्वेश्चन ये कि वीएच जो है हम आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा करना पड़ेगा प्रोडक्शन सिस्टम नेटवर्क। वाइड कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया ना, जैसे सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ती है सिर्फ डिवाइस पे, ताकि वो वी बॉन्ड को रीच कर जाए। ठीक है, तो एक मैंने बताया ना उसमें क्या क्या रहता है, सर ने भी बताया था शायद इसके पहले। वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब पे डलेगी, वो सब पे डलेगी, वो हर डिवाइस पे आपको डालनी पड़ेगी, राइट। डलेगी, बट वी बॉन्ड पे आप वी बॉन्ड का आईपी डालोगे तो उसके साथ लोकल लिख दोगे, लोकल लिखना है, हाँ जी। ठीक है। लेकिन आप वीएच पे डालोगे या वी स्मार्ट पे डालोगे या वी मैनेज पे डालोगे तो उसमें कुछ लोकल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब वो आपको सिर्फ आईपी डालना पड़ेगा वी बॉन्ड का, राइट। ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, राइट। कि ऑन प्रेम डिप्लॉयमेंट में क्या रहता है, कैसे रहता है, फिजिकल सर्वर रहता है, फिर उस पे हम लोग हाइपरवाइजर्स ओएस डालते हैं, जैसे VMware का ESXi है, KVM है। फिर आपने वो पूछा था हाइपरवाइजर के बारे में? नहीं, अभी मेरी बात नहीं, पूछ लेंगे आज। ठीक। तो और क्लाउड में आता है तो Azure या फिर AWS, एक्चुअली में सिस्को मैनेज का रहता है पूरा, सिस्को खुद से ही मैनेज करती है जनरली, और अगर आपका खुद का क्लाउड इंस्टेंस है तो आप खुद से भी ऐड कर सकते हो, बट फिर आपको पूरा मैनेज करना पड़ेगा। आप जब वर्चुअल बताओगे तो वो एज़्योर में बताओगे या Amazon? हमारा यहाँ पे तो पूरा ऑन प्रेम। हाँ जी, सॉरी, यहाँ पे पूरा ऑन प्रेमाइसेस, ऑन प्रेमाइसेस है, तो आप वर्चुअल वाला भी बताओगे? ये वाला है पूरा। हाँ जी। हाँ, नहीं, सॉरी, वर्चुअल वाला, क्लाउड, सॉरी। क्लाउड का मेरे को पूछना पड़ेगा तुझसे से कि उनके पास इंस्टेंस नहीं है, क्योंकि क्लाउड का फिर अलग ही आ जाता है, उसमें काफी कुछ रहता है। दादा, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से बताइएगा कि कौन सा क्या। एक्चुअली में हमारा बेसिक मेजर जो क्लाउड में डेप्लॉयमेंट है ना, आप ऐसे समझिए क्लाउड का जो डेप्लॉयमेंट है वो पूरा सिस्को मैनेज करके देती है, तो आपको उसमें कुछ ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑन प्रेम कर रहे हैं तो आपको सब कुछ खुद से करना है, तो ये ज्यादा डिटेल में आपको पूरा बता रहा है कि मतलब कैसे कैसे मैंने हर डिवाइस को डिप्लॉय करना है। मैंने बताया था ना, अगर आप सिस्को क्लाउड से लेते हैं तो वी मैनेज वो अपने वी बॉन्ड और वी स्मार्ट खुद ही डिप्लॉय करके देते हैं आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको सिर्फ VHS को अपनाना है, राइट। बट इस एनवायरनमेंट में हम लोग खुद से वी मैनेज, वी बॉन्ड, वी स्मार्ट सब कुछ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके। हाँ सरबजीत, आपका कुछ क्वेश्चन? एक्चुअली अनम्यूट हो गया था, तो वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मेरे यहाँ पे, मैंने म्यूट किया था, फोन आ गया था किसी का। ओके, ठीक है। ओके, तो ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। फिर अभी क्या क्या रहता है इसके अंदर, एक मिनट। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सर्टिफिकेट में जो टॉपिक्स कवर्ड हैं वो आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग जो है SD-WAN सॉल्यूशन ओवरव्यू, SD-WAN क्या है, उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, ये हमने कवर कर लिया, राइट। मैनेजिंग SD-WAN कंपोनेंट्स क्या है हमारे, वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड, वी एज, राइट। ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए। तो ये हमने इसका ओवरव्यू क्या है, क्या क्या
किस कंपोनेंट का क्या काम रहता है वो हमने पूरा मतलब कवर कर लिया। अभी डिटेल में देखेंगे बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमको आ गई है कि क्या कंपोनेंट क्या काम कर रहा है, राइट। फिर हाँ यार, ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है? अनम्यूट नहीं करने देता। Is this because you are not अभी on? अभी अगर है तो तभी म्यूट करो। अगर कुछ क्वेश्चन है पूछ लो, उसके बाद आप प्रेजेंट कर लेना। ऐसा करते हैं, पहले हम कवर कर लेते हैं कुछ स्लाइड्स, फिर आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना आप एक बार में पूछ लीजिए, क्योंकि होगा कि इसमें होता क्या है, आप जैसे चलते हो ना वैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आप आगे जी। चले जाओगे ना, फिर भूल तो जाएंगे वो हम। भूल जाएंगे, उसी टाइम वही क्लियर बात हो है। जाए तो वो जैसे easy आपने रहेगा। बताया ना अभी क्लाउड में ये सब जो रहते हैं, आपने जैसे बताया अभी किसी को ही मैनेज करता है, बट होता क्या है कि प्रैक्टिकल जब एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, लाइव एनवायरनमेंट, तो क्लाइंट ऑन प्रीमाइस शायद नहीं भी है और क्लाउड में है, तो उसको कैसे मैनेज करना है? उसको तो ये हम नहीं बोल सकते कि भाई जो 90% डेप्लॉयमेंट्स है, वही मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो 99% डेप्लॉयमेंट्स हैं वो मेजरली जो आपका वी मैनेज, वी स्मार्ट, वी बॉन्ड कंपोनेंट है वो सिस्को प्रोवाइड करती है, ठीक है। बहुत कम केसेस में ऐसा रहेगा कि आप जो है इवन ऑन प्रेम पे देखेंगे, और उन ऑन प्रेम वाले में जो रहेगा वो तो मैं आपको मतलब वो तो यहाँ पे सिमिलरली कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से रहता है ऑन प्रेम में, कैसे आप मैनुअली वी खुद से वी मैनेज को करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, ये लैब में करेंगे ही सही एक बार, तो फिर ज्यादा ही क्वेश्चन आएंगे अभी तो। करेक्ट, ठीक है। तो ये फिर हम लोग टेम्पलेट, होता क्या है कि जब भी हमारा वी मैनेज आप मतलब वी एच ने ज्वाइन कर लिया, वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ टनल फॉर्म हो गई, तो होता क्या है कि उसके बाद हमारी टेम्पलेट्स रहती हैं SD-WAN के ऊपर। तो टेम्पलेट्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, उसमें टेम्पलेट्स डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट आती है, और फीचर टेम्पलेट से डिवाइस पूरी टेम्पलेट बनती है, ठीक है। तो टेम्पलेट, फीचर टेम्पलेट कैसे होती है, मान लीजिए जैसे आपको OSPF कॉन्फ़िगर करना है तो उसका एक फीचर टेम्पलेट रहेगा, ठीक है। फिर आपको VPN से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करनी है, जैसे VPN में भी यहाँ पे 2 टाइप के VPN आते हैं, मैंने बताया ना, जैसे आपका एक लैन साइड रहता है, ठीक है, एक डिवाइस का, और एक आपका वैन साइड रहता है जहाँ पे आप कनेक्ट आपके लिंक को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आपका आपकी आवाज नहीं आ रही है, अभी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ अब आ रही है, हाँ अब आ जी, रही है। अभी बीच में चली गई थी, प्लीज रिपीट करिए। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि जैसे कोई भी डिवाइस रहती है, जैसे एक वी-एज रहता है, राइट। तो वी-एज में 2 चीजें रहती हैं, एक आप तो लिंक कनेक्ट करते हैं ना, जैसे इंटरनेट, मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट आप कनेक्ट करते हैं, या तो इंटरनेट रहेगा या फिर MPLS रहेगा, राइट। तो ये जो, तो यहाँ पे है ना, इसमें VPN डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका ट्रांसपोर्ट साइड का VPN रहेगा, MPLS का जो लिंक कनेक्ट रहेगा या फिर इंटरनेट का जो लिंक रहेगा, वो हमेशा VPN 0 के अंडर रहेगा, राइट। और 512 रहेगा मैनेजमेंट में, राइट। हाँ, और फिर एक VPN 512 रहेगा 512, वो रहेगा मैनेजमेंट के लिए, इस डिवाइस के मैनेजमेंट के लिए। गॉट इट, हाँ ठीक है। और फिर जैसे आप MPLS में हो सारा कंसेप्ट VRF का, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, VPN 10, 20, मतलब ये नंबर डाल सकते हैं। तो ये VPN, तो ये जो VPN रहेंगे इनको बोलेंगे सर्विस VPN, क्योंकि ये लैन साइड के VPN है और ये सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मतलब एज डिवाइस पे कनेक्टेड रहेंगे तो वो दीज आर द सर्विस VLAN। हाँ, सर्विस, हाँ, तो इसमें VLAN भी हो सकता है या फिर आपकी राउटिंग भी हो सकती है नीचे आपका, जैसे कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच कनेक्ट रह सकता है जहाँ पे आपकी VLANs होंगी, गेटवे VLANs, राइट। और फिर आप इस डिवाइस, इस पर्टिकुलर VPN पे OSPF रन कर सकते हैं, ताकि आपको सारे जो भी आपकी SPI VLANs हैं वो सारे रूट्स यहाँ पे मिल जाए, राइट। तो इधर जो डाउन साइड, जो नीचे की साइड में, लैन साइड में जो भी कनेक्टिविटी रहेगी, हम उसको सर्विस VPN बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से पूछिए। और वैन साइड में कुछ भी रहेगा, जैसे आपका इंटरनेट हो गया या फिर आपका MPLS हो गया, ये हमेशा VPN 0 के अंदर रहेगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप कॉन्फ़िगर भी करोगे डिवाइस के अंदर जाकर के, वैसे हम लोग डिवाइस पे जाकर के CLI से कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे मोस्टली,
बट वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, बट हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग टेम्पलेट से कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन जब टेम्पलेट से भी कॉन्फ़िगर करेंगे, आप CLI में जाकर के देखोगे तो जो भी MPLS और इंटरनेट या जो भी ट्रांसपोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको अंडर VPN 0 के अंदर देखेगी। तो अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन देखनी है कि मेरे ट्रांसपोर्ट साइट पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, मेरे वैन पे लाइक मेरे इंटरनेट लिंक पे क्या कॉन्फ़िगरेशन डाली है, MPLS लिंक पे क्या कॉन्फ़िगरेशन डाली है, तो आपको शो रन VPN 0 कमांड करके देखना पड़ेगा। तो आपको VPN 0 के अंदर ये सारी क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो सब दिख जाएगा। अगर एक बात बताइए, अगर टेम्पलेट रिवर्ट बैक करना हो, मान लीजिए कि कोई डिटेल गलत चली गई है, तब वो हम लोग जब कवर करेंगे टेम्पलेट तो डिटेल, ओके जी, क्योंकि अभी कैसे अगर मतलब अभी मैं मतलब ऑप्शन है, अवेलेबल है, मैं मेरा सब कुछ क्वेश्चन ठीक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी ठीक है। जो है वो उसके ऊपर सीधा जंप नहीं करते हैं, बट नहीं मैं सिंपल वही था, अभी तो बाद में ही बताया। हाँ, तो टेम्पलेट्स में हम लोग कवर करेंगे कि टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं, क्या क्या रहती है टेम्पलेट्स, उसका ओवरव्यू देखेंगे। फिर फीचर टेम्पलेट क्या होती है, मैंने बताया फीचर टेम्पलेट में आप पर्टिकुलर जैसे हर एक फीचर की कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो, आप OSPF की कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हो, BGP, फिर आपको सर्विस VPN, मैंने बताया सर्विस साइड VPN की कॉन्फ़िगरेशन आपको डालनी पड़ेगी। फिर सर्विस साइड VPN में उसकी इंटरफेस कौन कौन सी लेनी है आपको वो डालनी पड़ेगी आपको। फिर ट्रांसपोर्ट VPN की कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी टेम्पलेट रहेगी, फीचर टेम्पलेट। तो ऐसे पार्ट्स रहेंगे हर चीज के, ठीक है। जैसे आपको SNMP की कॉन्फ़िगरेशन डालनी है तो SNMP फीचर रहेगा, SNMP फीचर की टेम्पलेट डालनी पड़ेगी। लॉगिंग करने के लिए आपको डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे जो भी हमारे सिस्को राउटर में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहती है, AAA की रहती है ना, राइट, डिवाइस पे TACACS के थ्रू या रेडियस के थ्रू लॉगिन करने के लिए, तो AAA की भी फीचर टेम्पलेट रहेगी। तो वो सारे फीचर्स टेम्पलेट ऐड करके आप मेन डिवाइस टेम्पलेट बनाओगे, और वो डिवाइस टेम्पलेट जो है आप डिवाइसेस पे पुश। मेरा जस्ट एक टीम से क्वेश्चन था कि टेम्पलेट किसी ने यूज किया है? मैंने तो नहीं किया यार। ओके, एक्चुअली वीडियो में मैंने देखा है, वीडियो वगैरह में देखा हुआ है कि टेम्पलेट को क्या कैसे पुश करते हैं। अगर तो वो पार्सर के थ्रू टेम्पलेट बनता है तो दैट आई नो। यूजुअल अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो बताइए। नहीं, वो इसमें जो रहता है वो पूरा कंसेप्ट टेम्पलेट का, वो मैं जब हम लॉगिन करेंगे लैब में तब मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे क्योंकि हमने किया नहीं है इसको। पूरा ही कवर करने वाले हैं, उसका टेंशन। ठीक है जी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर SD-WAN टेम्पलेट हो गया, तो टेम्पलेट मैंने कवर कर लिया क्या क्या पढ़ने वाले हैं। SD-WAN फिर पॉलिसीज रहती है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा vSmart रहते हैं, ठीक है। vSmart होता है क्या कि जो भी vEdge हैं वो सारे अपने रूट्स जो हैं वो vSmart को बता देते हैं, राइट। तो vSmart के पास पूरा व्यू रहता है कि किस डिवाइस के पास क्या राउट्स हैं, क्या सब। तो यहाँ पे हम लोग पॉलिसी बना सकते हैं कि हमको अगर ब्रांच A से ब्रांच B के बीच कम्युनिकेट कराना है तो कौन कौन से राउट्स वो के लिए वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे पॉलिसीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और वो पॉलिसीज हम डिफाइन कर सकते हैं कि किन किन डिवाइस पे वो पॉलिसी लगानी है, ठीक है। जैसे डिवाइस A और डिवाइस B के बीच में पॉलिसी लगानी है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे किन किन कौन कौन से रूट जो है साइड A से आ रहे हैं। तो उसमें से मान लिया जैसे 50 रूट्स आ रहे हैं, तो हमको सिर्फ 10 रूट एडवर्टाइज करने हैं, बट वो 10 रूट कौन से हैं वो हम लोग जैसे हम एक्सेस लिस्ट लगाते हैं ना सिस्को में, हम लोग यहाँ पे भी काइंड ऑफ या प्रीफिक्स लिस्ट यूज करते हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्रीफिक्स लिस्ट यूज करके वो 50 में से 10 रूट्स आइडेंटिफाई करके और फिर उनको बोल सकते हैं कि ये जो रूट्स हैं सिर्फ ये साइड बी के पे जाने चाहिए। इसी तरीके सर वो हम रूट जो है एक्सेस उसको GUI के थ्रू मतलब फिल्टर करेंगे कि कमांड लाइन होगा सर उसका कोई? हम लोग मैंने बताया ना, जैसे हम लोग पॉलिसीज डिफाइन करेंगे, अच्छा अच्छा। पॉलिसी जो रहेगी वो सब पूरा GUI पे रहेगी, लेकिन जब वो हम डिफाइन कर देंगे तो उसका CLI इक्विवेलेंट कमांड्स अपने आप पुश हो जाएंगी। अच्छा अच्छा। टेम्पलेट में नहीं जाएगा क्या वो पॉलिसी? नहीं, टेम्पलेट तो हमको GUI में दिखती है, जो कमांड फॉर्मेट रहेगी ऑलमोस्ट सिस्को टाइप की जैसी दिखेगी आपको, सिस्को की कमांड जैसे रहती है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि पॉलिसी और QS हम टेम्पलेट में अमेंड नहीं कर सकते?
मेरा तो क्वेश्चन ये वही मैं बोल रहा हूँ, जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो टेम्पलेट बेस्ड पॉलिसी का एक सेक्शन रहता है एक्चुअल में। हम लोग कवर करेंगे वो चीज कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं पॉलिसी। तो जब हम वहाँ पे वो पॉलिसी डिफाइन कर देंगे तो होगा क्या कि उस पॉलिसी से कॉन्फ़िगरेशन जनरेट होगी जो कि हम देख भी सकते हैं, और वो जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पुश हो जाएगी वी स्मार्ट को। अगर वो उसमें भी दो टाइप के आते हैं, सेंट्रलाइज पॉलिसी आती है और लोकलाइज पॉलिसी आती है। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वी स्मार्ट को और फिर वी एजेस को पुश हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो देख पाएंगे कि पॉलिसीज CLI फॉर्मेट में कैसी दिखती है। ठीक है, ठीक। अच्छा सर, ये क्वालिटी ऑफ सर्विसेज ये विप्रिला सपोर्ट नहीं करता है क्या? क्वालिटी ऑफ सर्विसेज करता है। अच्छा, तो मेरा एक फ्रेंड बता रहा है शायद ये विप्रिला में क्वालिटी ऑफ सर्विसेज सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग वो गलत होगा। ठीक है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, क्यूएस तो मतलब आईपी नेटवर्क में तो क्यूएस चलेगा ही चलेगा। चलेगा, हाँ सर वही। ठीक है। यूएस करता है ऐसा भी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आते हैं। आप लोग एप्लीकेशन फायरवॉल का फीचर आता है, फिर आप जो है क्यूएस में आप मार्किंग, आपको किस सर्विस के लिए कितना ट्रैफिक डिसाइड करना है, और फिर एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग भी आता है कि आप एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कौन सा लिंक यूज करना है, कितना बैंडविड्थ देना है, वो भी आप यूज करेंगे। वो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा पॉलिसी क्यूएस में। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि सिक्योर एक्सटेंसिबल नेटवर्क डिप्लॉयमेंट। अभी ये सिक्योर कैसे रहेगा? ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि सिक्योर्ड कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी कवर कर लेता हूँ। उज्जवल भाई कोई ब्लैंक शीट ले लेनी है, ले लीजिए, इसी में न्यू शीट ऐड कर दीजिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक, थैंक यू। तो क्या होता है कि जैसे आपका ये इंटरनेट लिंक कनेक्टेड रहेगा। वो कंपलसरी इंटरनेट होना चाहिए या कुछ और भी होना चाहिए? बिकॉज आई नहीं, थिंक वी अगर बॉन्ड के पास वो डिपेंड, और भी वो कैसे डिपेंड करता है कि आपका अगर वी बॉन्ड क्लाउड में होस्टेड है। ओके, क्योंकि उसको लाइव आईपी चाहिए ना वो। हाँ, उसको लाइव आईपी चाहिए। तो अगर वो क्लाउड में होस्टेड है वी बॉन्ड आपका, तो क्लाउड की रीचेबिलिटी आपके नेटवर्क से कैसे है? अगर आप दो तरीके से कनेक्टिविटी हो सकती है क्लाउड की। एक तो रहता है आपका जो है आप इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी रहेगी। ठीक है, एक दूसरा आपका MPLS एक्सप्रेस राउट के थ्रू हो सकती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो सकती है आपकी कनेक्टिविटी क्लाउड के साथ। बट जब वो MPLS से इंटरनल जाएगा तो उसको पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है ना, वी कैन डिफाइन इंटरनल आईपी एज वेल। करेक्ट। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका वी बॉन्ड आप इंटरनल डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि जब आप अगर आप दोनों यूज कर रहे हो MPLS भी और इंटरनेट भी, तो आपको दो आईपी डिफाइन करने पड़ेंगे वी बॉन्ड के। ओके, राइट। अगर आपका MPLS लिंक डाउन चला गया तो आपका इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट? यस। तो इसके लिए जो है दोनों के थ्रू रीचेबल होना चाहिए, MPLS और इंटरनेट। लेकिन अगर आपकी क्लाउड की रीचेबिलिटी सिर्फ इंटरनेट से है तो आपको सिर्फ इंटरनेट का आईपी देना पड़ेगा। ओके, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये था, उस टाइम में म्यूट था वी बॉन्ड पे। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जब ये फर्स्ट टाइम वी एज शुरू होगा उसमें हमने डिफाइन कर दिया कि आपका आईपी एड्रेस है, सिस्टम आईडी क्या, सिस्टम आईपी, और जो भी 2-3 पैरामीटर। हाँ, करेक्ट। और वी बॉन्ड का आईपी एड्रेस उसको दे देते हैं। तो वो जब कनेक्ट हो गया उसके बाद में वी बॉन्ड आगे वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ उसकी टनल बनेगी ना वी एज के साथ। अब होता क्या है कि जब आपका क्या होता है कि वी आपका सबसे पहले जो है आप आपके वी बॉन्ड को कॉन्फ़िगर करते हो सबसे पहले नेटवर्क में। सही बात। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपकी जो डिवाइस वी बॉन्ड को आप मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हो, सारे पैरामीटर सिस्टम आईपी वगैरह सब कुछ डालते हो। ठीक है, उसके बाद और वी बॉन्ड को हमेशा मैनुअली कॉन्फ़िगर किया जाता है। ठीक है, बाद आप जो है वी मैनेज कॉन्फ़िगर करते हो और वी मैनेज में आप वी बॉन्ड का आईपी डालते हो।
ठीक है, और सिमिलरली आप स्मार्ट, कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है, और भी वो भी बॉन्ड का IP डालते हो। ठीक है, क्या है कि ये डिवाइस जो है वी बॉन्ड से भी ऑथेंटिकेट होती है, वैसे जैसे वी एज होती है वैसे ही वी स्मार्ट और वी मैनेज भी होती है, ठीक है। ओके, ऑथेंटिकेट हो गई अब, तो ये डिवाइस क्या कर लेती है, इसके साथ परमानेंट टनल बना देती है। राइट, जो टनल रहती है वो DTLS या फिर TLS टनल रहती है, ट्रांस लेयर सिक्योरिटी टनल रहती है, ठीक है। सर्टिफिकेट बेस्ड टनल रहती है, क्योंकि ये लोग सर्टिफिकेट एक्सचेंज करते हैं आपस में, राइट। तो सर्टिफिकेट सिक्योरिटी बेस्ड, तो ये आपस में एक एनक्रिप्टेड टनल बना लेता है, और ये हमेशा रहती है वी बॉन्ड के साथ। वी मैनेज और वी स्मार्ट हमेशा सिंक में रहेगा वी बॉन्ड के साथ, भी ये टनल ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन जब वी एज फर्स्ट टाइम आप आता है और हम उस पर वी बॉन्ड का IP डालते हैं, अब वी बॉन्ड को ये तो ऑलरेडी पता है कि वी मैनेज और वी स्मार्ट क्या है, क्योंकि इसने ऑलरेडी टनल बना रखी है ना, करेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपका वी एज आता है तो वी एज को IP रीचेबिलिटी मिल गई, तो वी एज भी क्या कर लेता है, DTLS टनल बनाता है आपकी वी बॉन्ड के साथ, ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे DTLS क्या है, DTLS एक UDP बेस्ड सिक्योर टनल है, एनक्रिप्टेड टनल बोल सकते हो। तो इसमें जो भी ट्रैफिक, क्योंकि आप इंटरनेट की, अगर आपके पास MPLS लिंक नहीं है तो आप इंटरनेट के ऊपर जा रहे हो, राइट, आपका पूरा इंटरनेट पे जा रहा है, तो इंटरनेट पे तो कोई भी आपका ट्रैफिक देख सकता है। तो आप सिक्योर करने के लिए आप एनक्रिप्टेड टनल, सर्टिफिकेट बेस्ड DTLS टनल यूज करते हो, ठीक है। तो ये टनल बन जाती है उसके क्योंकि अब वी बॉन्ड की टनल ऑलरेडी बनी है, वी मैनेजर वी स्मार्ट से परमानेंट टनल रहती है। ऑथेंटिकेशन हो गई, टनल बन गई, वी बॉन्ड क्या कर देता है, वी स्मार्ट और वी मैनेज का IP दे देता है, ओके, ठीक है, वी एज को। अब एज को जरूरत नहीं है वी बॉन्ड की, तो वी एज क्या करता है, मेरे को IP मिल गए वी स्मार्ट के वी बॉन्ड की, मैं ये वाली टनल जो मेरी बनी हुई है वी बॉन्ड से, इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब जब इसको वी स्मार्ट और वी मैनेज के IP मिल गए हैं, वो भी अगर आपका सिर्फ वो भी क्लाउड में रहेंगे, तो अगर आपका इंटरनेट ही लिंक है क्लाउड को रीच करने के लिए, तो उनपे भी आपको एक पब्लिक IP देनी पड़ेगी, राइट, दोनों पे। तो होगा क्या कि अब इसको IP मिल गया, तो ये आप वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ टनल बनाएगा, टनल बना DTLS, लेगा, DTLS या TLS, ठीक है। इन दोनों में TLS मोस्टली यूज करते हैं, बट DTLS पे भी बना सकता है। तो डिफरेंस क्या है DTLS और TLS में, दोनों ही एनक्रिप्टेड है, दोनों ही एनक्रिप्टेड सर्टिफिकेट बेस्ड टनल्स हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि DTLS UDP बेस्ड है और TLS जो है वो है TCP बेस्ड, ओके, ठीक है। और ये यूज करता है पोर्ट 1 2 3 4 6, ये पोर्ट नंबर यूज करता है UDP और TCP टनल्स फॉर्म करने, ठीक है। ओके। अब आगे वी बॉन्ड का क्या रोल है फिर? उसने तो जस्ट जैसे एक बार फर्स्ट टाइम उसने इसका रोल यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, फिर कब उसकी मतलब ये क्या सिर्फ न्यू साइट प्रोविजनिंग के लिए ही है, या मतलब जब नहीं भी नहीं, अब क्या हो गया, अगर आप अभी तो आपकी साइट अप एंड रनिंग, राइट, करेक्ट, बट आपका लिंक डाउन चला गया, ओके, इन शॉर्ट ये जस्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट टाइम ही यूटिलाइज होता है। एक बार उसने उसको ऑथेंटिकेशन करा दिया और उसने वी मैनेज और वी स्मार्ट के IPs दे दिए, ये टनल आपकी ब्रेक हो जाएगी। गॉट तो इट, ये जो 3 डिवाइसेस है, ये क्या काम कर रही है बेसिकली, ये कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल कनेक्शन, कंट्रोल बोल रहे हैं ना, कंट्रोल डिवाइसेस, कंट्रोल हमने बोला ना कंट्रोल प्लेन। तो आपका वी स्मार्ट क्या हो गया, कंट्रोल प्लेन हो गया, वी मैनेज भी एक तरीके से आपका कंट्रोल ही कर रही है ना, आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उस डिवाइसेस को लेकर के, करेक्ट, तो इनको क्या बोलते हैं, कंट्रोल कनेक्शंस बोलते हैं। जो भी हम लोग वी फोन के साथ या फिर वी मैनेज के साथ या वी स्मार्ट के साथ जो भी कनेक्शन बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल कनेक्शंस। तो आप कभी भी जब आप जो है आप देखोगे, आपको चेक करना है कि मेरी जो डिवाइस है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसके सारे कनेक्शंस फॉर्म कर रहे हैं। तो आपकी जब डिवाइस आप डिप्लॉय करोगे या डिवाइस अप हो जाएगी, तो आप कमांड डालोगे शो कंट्रोल कनेक्शन ट्रबल शूटिंग के लिए। ओके, तो आपको दिखेगा कि कंट्रोल कनेक्शंस में आपकी डिवाइस ने जो है बी बॉन्ड के साथ भी आपका कनेक्शन है, कंट्रोल कनेक्शन है। ये तब देखोगे जब आपकी डिवाइस डिप्लॉय हुई है, फर्स्ट फ्रेश डिप्लॉयमेंट है,
उसके विद इन मिनट्स आप देखोगे तो आप देखोगे कि आपका एक कंट्रोल कनेक्शन वीबॉन्ड के साथ है, फिर आपका वी स्मार्ट के साथ कंट्रोल कनेक्शन बना हुआ है, और वी मैनेजर कंट्रोल कनेक्शन बना हुआ है। ये आप VH पे देखोगे, ई कमांड डालोगे शो कंट्रोल कनेक्शंस। बट थोड़ी देर में जब आप वो फिर से कमांड डालोगे तो आप देखोगे वी बॉन्ड के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया। यहाँ पे वी बॉन्ड की कोई लिस्टिंग नहीं दिखेगी आपको, फिर आपको सिर्फ वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ कनेक्शन दिखेंगे परमानेंट। ठीक है, तो ये होते हैं कंट्रोल कनेक्शन। ठीक है, तो आपका वी स्मार्ट और वी मैनेज के साथ हमेशा कंट्रोल कनेक्शन रहेगा, क्योंकि इस कंट्रोल कनेक्शन के ऊपर वी मैनेज आपको कॉन्फ़िग पुश करेगा। ठीक है, वी स्मार्ट पॉलिसीज पुश करेगा, राउटिंग वगैरह की QoS पॉलिसीज या जो भी आप डिफाइन करोगे पॉलिसीज रिलेटेड, वो स्मार्ट पुश करेगा, वी मैनेज आपकी कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा। तो ये टनल हमेशा अप रहनी चाहिए। लेकिन मैंने बताया था कि तीनों अलग डिवाइसेस है, अगर डाउन भी चली जाती है वी मैनेज या वी स्मार्ट, तो भी जो हमारा एक्चुअल डाटा ट्रैफिक है वो तो चलता रहेगा ना, क्योंकि डाटा ट्रैफिक तो यहाँ इन पे नहीं जा रहा है, वो तो लिंक से होकर के VHS के बीच में मूव कर रहा है, राइट? कुछ डाउट्स हैं यहाँ पे? एक डाउट है, ठीक है, आपने एक एज डिवाइस को ऑथेंटिकेट करवा दिया, नेक्स्ट जो मेरा नेक्स्ट एज डिवाइस आएगा उसको भी ऑथेंटिकेशन सेम हो जाएगी, बट एज टू एज बात करनी है तो वो IP6 टनल से होगा। करेक्ट। वो IP6 टनल वो कैसे बनेगी एज टू एज? तो वो हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, बट मैं आपको एक फिर भी मोटा मोटा बता दो, बस थोड़ा थोड़ा बता दो, और कुछ नहीं। एक्चुअली इतना कुछ कर दिया था तो मैं क्या यार एक ये चीज भी पूछ ही ले। हाँ नहीं सही है, आई मीन सबसे कनेक्टिविटी हो गई इसकी, वी स्मार्ट वी मैनेज से एक टनल बन गई, बट हाउ वो टू एज वी एज विल टॉक। एक क्वेश्चन और था, एक लेते हैं। उज्जवल भाई, पहले इससे पहले मेरे को एक चीज बताइए, जब VH की वी स्मार्ट और वी मैनेजर के साथ टनल बनी, वो DTLS राइट, वो बनी, वो मैनेज वी मैनेजर के साथ बनी थी या उसके साथ बनी थी, स्मार्ट के साथ? जहां तक मेरे को आइडिया है कि बनेगी, दोनों के साथ बनेगी। दो टनल बनेगी या एक टनल बनेगी? दो टनल बनेगी। दो टनल बनेगी। वी मैनेज के साथ कौन सी किस प्रोटोकॉल के साथ बनेगी? कौन सी टनल नेगोशिएट करते हैं, आपका TCP UDP दोनों बेस पे बनते हैं, मोस्टली TLS टनल बनती है। मैनेजमेंट के साथ UDP की नहीं बनेगी क्या? नहीं, वो नेगोशिएट होता है डायनेमिकली। अगर उसको मतलब ऐसा है कि TLS या DTLS दोनों में से आपको एक टनल दिखेगी, बट मोस्टली अगर देखते हैं तो TLS टनल दिखेगी। ओके जी, दोनों पे ठीक बस ठीक है जी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एज टू एज कनेक्टिविटी, एज टू एज IP6 जो टनल बनती है वो कैसे बनेगी? तो जैसे आपका ये वी स्मार्ट है, ठीक है, ये आपका वी स्मार्ट है, ये आपके VH1 हो गया साइड A पे, दिस इज ऑन साइड A एंड दिस इज ऑन साइड B। तो ये मान लिया हम सिर्फ एक सर्किट ले रहे हैं अभी, इंटरनेट की रिचेबिलिटी है, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट है, और ये आपका वी स्मार्ट है और ये भी मैंने ठीक है। अब क्या होगा कि मैंने जैसे बताया था कि जैसे ही आपकी टनल बन जाती है वी स्मार्ट को लेकर के, ठीक है, तो आप इस पे कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन पुश करोगे। तो मैंने बताया था कि VPN 0 होता है, राइट? VPN 0 जो रहता है वो आपका वैन साइड कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है। तो आप VPN 0 पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं? तो VPN 0 पे आपके मेजर आपके सर्किट्स मैंने बताया था, आपके MPLS रहता है या फिर इंटरनेट, करेक्ट?
तो MPLS और इंटरनेट सर्किट इन दोनों में से रह सकता है, और भी रह सकते हैं, बट मेजर जो रहते हैं MPLS और इंटरनेट सर्किट रहते हैं। होता क्या है कि ये जो डिवाइस है, ये सर्किट को इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका अलग रहता है, ठीक है। तो एक सर्किट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं VH में कि एक VH का सिस्टम IP हम डिफाइन करते हैं, राइट। जब हम सिस्टम वाइड कॉन्फ़िगरेशन डालते हैं तो उसमें इस डिवाइस का सिस्टम IP डालते हैं, जो कि एक राउटर ID के साथ जैसा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका सिस्टम IP है ये साइट 10.1.1.1, ठीक है। इसका है 20.1.1.1, ठीक है। तो इस पे अभी तो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, एक ही लिंक है, तो इसको इस सर्किट को एक टपल से आइडेंटिफाई करते हैं। सिस्टम IP रहेगा, फिर रहेगा इसका कलर। इसमें जो भी सर्किट है उनको कलर से आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। और फिर रहता आपका एनकैप्सुलेशन मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, या तो IPsec रहेगा या GRE, ठीक है। तो इस पूरे टपल को, टपल क्यों बोल रहे हैं कि इसमें तीन चीज आ रही है ना, किसी टपल भी टपल मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? टपल 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 TUPL, इसको कोई ट्यूपल भी प्रोनाउंस करता है, TUPL टपल। ओके ओके। अब इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, एक तो सिस्टम IP हो गया, कलर हो गया, और ठीक है। IPsec हो गया, ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गई, ठीक है। एनकैप्सुलेशन कौन सी टनल किस वे में फॉर्म कर, तो ये IPsec हो सकता है या GRE हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली केसेस में IPsec यूज होता है। अभी कलर का क्या रोल है सर्किट में, तो SDWAN एनवायरनमेंट में जो भी आपका ट्रांसपोर्ट साइट रहेगा, जिसको हम लोग VPN 0 बोलते हैं, उसमें सर्किट को आइडेंटिफाई करने की तरीका है। वो तरीका क्या है कि अगर आप, जैसे आपका MPLS लिंक है, ठीक है, तो आप उसको कलर दे सकते हैं MPLS, ठीक है, या फिर आप उसको कलर दे सकते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट में भी आप उसको कलर दे सकते हैं प्राइवेट 1 से लेकर के प्राइवेट 7 या फिर 8, आई थिंक, देखेंगे, बट ऐसे दे सकते हैं। मतलब जैसे आपका मैंने बताया था ना, एक उस पे 7 ट्रांसपोर्ट सपोर्ट करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके 7 डिफरेंट MPLS लिंक है, ऐसा होता नहीं है बट एज्यूम कर लीजिए। तो अब हर एक सर्किट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सिस्टम IP तो राउटर का सेम ही रहने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हर एक सर्किट के अंदर जो है उसको एक कलर देंगे। तो वो कलर या तो अगर जैसे हमारे 7 सर्किट है तो उसको ऐसे दे सकते हैं, कलर एक सर्किट पे कलर प्राइवेट 1, मतलब ये सर्किट आइडेंटिफाई करने के लिए एक टैग है उस डिवाइस पे, करेक्ट। फिर दूसरा कलर प्राइवेट, दूसरे सर्किट के लिए प्राइवेट 2, ऐसे करके हम प्राइवेट 7 तक दे सकते हैं, राइट। तो हम हर एक सर्किट को एक कलर से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा, अगर MPLS है या फिर प्राइवेट लिंक है कोई भी, तो उसको हम इस टाइप के कलर देंगे। फिर लेकिन अगर हमारा लिंक इंटरनेट है तो उसको क्या क्या कलर देंगे, उसके लिए भी प्री डिफाइंड कलर्स हैं SD-WAN में। तो कलर क्या क्या है उसमें, या तो बिज इंटरनेट देंगे, बिजनेस इंटरनेट, ठीक है, या फिर हम लोग नॉर्मल कलर जो यूज करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, हाँ, रेड ब्लू ऐसे सब देते हैं, सिल्वर, ग्रीन, ब्लू। तो जब भी आप ऐसे एक्चुअल कलर दोगे तो हमेशा याद रखना कि ये सर्किट इसको आइडेंटिफाई कर, मतलब डिवाइस को पता चल जाता है कि अरे ये तो इंटरनेट सर्किट है, ठीक है। और मतलब डिवाइस हर एक कलर के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करती है कि ये MPLS है, और उसके हिसाब से उसका बिहेवियर चेंज होता है। समझ में आया? वो मैं एक्सप्लेन बताऊंगा बाद में कैसे, लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपका एक MPLS सर्किट है और इंटरनेट सर्किट है, तो आप इंटरनेट वाले को हमेशा
कलर जो है या तो बिजी इंटरनेट दोगे या फिर इस तरीके के कलर दोगे गोल्ड या सिल्वर, कभी भी आप उसको इंटरमिक्स नहीं करोगे, आप कभी भी इंटरनेट वाले सर्किट पे प्राइवेट वन नहीं डालोगे, वरना आपका नेटवर्क कभी भी आप नहीं आएगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आ पाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रख लीजिए कि सर्किट के कुछ कलर्स होते हैं प्री डिफाइंड, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप एमपीएलएस की कैटेगरी में आप कोई भी कलर डाल सकते हो, आप एमपीएलएस भी डाल सकते हो, प्राइवेट 1 भी डाल सकते हो, प्राइवेट 8 भी डाल सकते हो, कोई भी कलर नाम दे सकते हो, लेकिन आप एमपीएलएस के सर्किट पे गोल्ड नहीं डाल सकते, सिल्वर नहीं डाल सकते। हाँ वो तो इंटरनेट का है ना, वो चलो। इंटरनेट का है। तो बस आपको ये क्लियर करने के लिए कि इस तरीके से हम लोग सर्किट को आइडेंटिफाई करते हैं। कर लिया, हाँ जी ठीक है। अब हो क्या गया कि अभी इस पे इंटरनेट सर्किट है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे tan 111 गोल्ड आईपी सेट। कहाँ पे? वो हम हमेशा जब हम ये इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन डालेंगे ना, हाँ मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे हमारा ये इंटरफेस है गीगाबिट 0/0, ठीक है। तो हम गीगाबिट, ये सब टैबलेट्स आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ CLI में कैसा दिखता है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, गीगाबिट 0/ जाऊंगा, इस पे नो शिट मारूंगा, राइट, और इस पे आईपी एड्रेस डालूंगा, क्योंकि ये इंटरनेट है तो कोई तो पब्लिक आईपी रहेगा, राइट। तो मान लीजिए मेरा जो पब्लिक आईपी है वो 80.1.1.1/30 हो गया, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, टनल इंटरफेस ऐसे, ठीक है। फिर टनल इंटरफेस के अंदर आप लोग डालेंगे एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एनकैप्सुलेशन में मैंने बताया दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो GRE या IPsec, बट मोस्टली हम लोग IPsec यूज करते हैं क्योंकि IPsec जो है मोस्ट सिक्योर्ड है, ठीक है। फिर हम लोग डालेंगे कलर यहाँ पे, ठीक है। तो आप कलर, क्योंकि ये हमेशा इंटरनेट सर्किट है तो हम यहाँ हमेशा यहाँ पे गोल्ड या फिर सिल्वर इस तरीके के कलर यूज कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये सर्किट क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, तो ये इंटरनेट सर्किट है और ये डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो इसी तरीके से जब हम MPLS कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट आईपी डालेंगे, पब्लिक, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टनल इंटरफेस डालेंगे, एनकैप्सुलेशन IPsec डालेंगे, कलर में डाल देंगे MPLS, हाँ ठीक है, या फिर प्राइवेट 1, ठीक है। तो इस तरीके से कलर पे बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग सर्किट को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, कर लिया। इस टपल को क्या बोलते हैं, इस टपल को बोलते हैं T-lock। T-lock, हाँ, ओके, का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसपोर्ट लोकेटर, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम आईपी है वो यूनिक है एक डिवाइस के लिए, हाँ लेकिन आपके कलर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करने में कौन सा सर्किट है, ठीक है। तो इस आइडेंटिफिकेशन, ये हर एक, मान लिया इस पे, मान लिया 3 सर्किट है, एक जो है आपका MPLS हो गया, एक इंटरनेट हो गया, और फिर एक दूसरा और एक इंटरनेट हो गया। अब एक के लिए तो कलर MPLS डाल देंगे, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इंटरफेस पे जाकर, दूसरे वाले इंटरफेस पे आप डाल देंगे गोल्ड, और तीसरे पे डाल देंगे सिल्वर। तीनों सर्किट आइडेंटिफाई हो गए, तो 3 T-lock हो गई बेसिकली डिवाइस के हिसाब से, ठीक है, समझा कि टपल को, ये जो एक्चुअल टपल बन रही है इसको हम लोग T-lock बोलते हैं, तो क्योंकि हमारे 3 सर्किट हो गए यहाँ पे, तो सर्किट और T-lock ऑलमोस्ट सिमिलर एनालॉजीज है, बट यहाँ पे SD-WAN टर्म्स में हम उसको T-lock बोलते हैं। एनी डाउट्स, कुछ डाउट्स हैं तो पूछ सकते हो। T-lock जस्ट एक नेबरशिप की तरह हो गया, राइट? नहीं, वही T-lock क्या कर रहा है, हमको डिवाइस पे मदद कर रहा है आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा सर्किट है। बट ये आपने सिर्फ इस एक साइड पे करके दिया है, दूसरे हर साइड पे ऐसे ही, वही मैं बोल रहा हूँ, हर साइड पे ऐसे ही उस एक मिनट, आपको ये समझ में आ गया ना T-lock का कंसेप्ट? हाँ, T-lock वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। T-lock कुछ नहीं है, एक सर्किट है, सर्किट है, सर्किट को हमने जस्ट एक
आइडेंटिफिकेशन दे दी कि MPLS के लिए अलग कलर कोड होगा, इंटरनेट के लिए अलग कलर कोड होगा। करेक्ट। ठीक और है, उसका सिस्टम आईपी भी अलग होगा। अच्छा, तो ठीक है, सिस्टम आईडी तो यूनिक रहेगा ही रहेगा। ये करें, ये सिर्फ VPN 0 में ही होगा ना? VPN जो VPN दूसरा 0 है, में ही रहेगा ये, VPN VPN में 0 में ही रहेगा। करेक्ट। VPN 5 और 2 में कोई कलर की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज जस्ट द मैनेजमेंट, राइट? वो तो उसका तो राउटिंग भी नहीं होता ना, वो तो लोकल ही रहता है। अभी बताऊंगा कि आपकी कैसे मदद करेगा। तो जैसे अभी हम लोग 2 ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका डिवाइस है ब्रांच पे VH1, ये आपका 2 है, और ये साइट A है, साइट B है, ठीक है। आप भी आपको समझ आएगा कि ट्रांसपोर्ट कैसे आपको मदद करेगा, ठीक है। और ये आपका हो गया vSmart यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बोला कि अब मान लीजिए यहाँ पे दो टाइप के ट्रांसपोर्ट है, ये MPLS है और ये इंटरनेट। अब इसका यहाँ पे एक सर्किट MPLS का आ रहा है, एक इंटरनेट का आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सर्किट MPLS का आ रहा है और यहाँ पे भी इंटरनेट का आ रहा है, और vSmart से हमारी कनेक्टिविटी है। तो अभी हमने दोनों सर्किट को, हमारे पास 2 टीलोक हो गई यहाँ पे। मान लीजिए जो सिस्टम IP है वो है 10.1.1 और इसका है 20.1.1, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे भी टी लॉग 2 हो गए, इधर भी यहाँ 2 पे भी लोग। यहाँ पे भी 2 टीलोक हो गई। यहाँ पे कौन सी टीलोक रहेगी? 10.1.1.1 मान लीजिए जो MPLS की है वो MPLS IPsec, ठीक है। ठीक है, दूसरी टीलोक हो गई 10.1.1.1 और इंटरनेट है तो सिल्वर लेते हैं, ठीक है, सिल्वर, और यहाँ IPsec। सिमिलरली यहाँ पे भी एक टीलोक 20 का हो गया, 20 से है, यूनिक हो गई ना सिस्टम IP की वजह से। हाँ जी, हो गया। 1.1.1 और आप मान लीजिए MPLS का आपने MPLS ले लिया और IPsec, ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी इंटरनेट के लिए हो गया, ठीक है। ये हो गया 20.1.1.1 और यहाँ पे इंटरनेट में हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, गोल भी ले सकते हैं यहाँ पे, ये मतलब अगर आप कुछ भी रख सकते हैं लोग, ठीक है जी, ठीक है। और यहाँ पे IPsec हो गई। अब क्या होगा कि ये तो हो गया VPN 0 पूरा, हाँ जी, VPN 0 की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये भी VPN 0 की इंफॉर्मेशन। हाँ जी, बिल्कुल। तो और इधर आपके दूसरे VPN हो जाएंगे, VPN 512 भी रहेगा मैनेजमेंट के लिए। अब क्या होगा कि ये जो रूट इंफॉर्मेशन है, ऐसा समझिए vSmart के लिए चाहे वो VPN 0 हो या कोई और VPN हो, उसके रूट्स वो उसको सेम ही कंसीडर करता है। समझ में आया? नहीं, ठीक है। नहीं मैं नहीं समझा, सॉरी। लैन मतलब एज के लैन जो रूट है और एज का जो VPN है, सॉरी, इट्स वेरी सिंपल, ये राउट रिफ्लेक्टर है। तो जो VPN 0 के रूट हैं वो VPN 0 के इस VPN 0 के रूट इस वाले VPN में 0 में ही ट्रांसफर करेगा। ओके, पर नहीं, वो जो लैन वाला है वो तो सर्विस, और जो लैन का रूट है वो VPN 10 का रूट सिर्फ VPN 10 में पहुंचाएगा। समझ में आया? हर जो सिंपल है। जो एक मिनट मैं ये जो लैन की तरफ VPN होता है दैट इज कॉल्ड सर्विस VPN, राइट? करेक्ट। हाँ, और जो वैन की तरफ है दैट इज ऑलवेज VPN 0। करेक्ट। ओके, तो VPN ही, लेकिन है तो VPN ना, और सेम डिवाइस पे अवेलेबल है। करेक्ट, बट 2 डिफरेंट VPN है ना, ये सर्विस VPN और VPN 0, ये दोनों बात कैसे करते हैं, ये बात है। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना। देखिए आपके राउटर पे तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो राउटर सेम आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है बात करने में। ओके, इवन इफ इट इज अ VPN। हाँ VPN है, लेकिन है तो सेम ही उस पे ना, दे वुड बी एबल टू टॉक टू ईच अदर।
राइट, ओके। तो ठीक है, जो सर्विस नहीं एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा, दो चीजें हैं, ये अलग VPN 0 है, उसमें भी कंसेप्ट है, अभी इंटरमिक्स नहीं करते हैं, मैं अभी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिए। VPN अलग है, वो आपस में हेलो उज्जवल। बाय डिफॉल्ट बात नहीं करेंगे। हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ अतुल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए अतुल जी। ओके सो गाइस बेसिकली क्या है ना, लाइक टोटल जो वीपीएन है विप्टेला पे वो है लाइक 1,65,530। ओके, एक से लेके 65,000 तक वीपीएन है। बट करेक्ट, okay, so VPN 0 and 512 both are already reserved. VPN 0 is for transport, right? And करेक्ट, VPN 512 is for management. Clear? या And now, if you want more VPNs, you can create from 1 to 511 because 0 and 512 is reserved. 1 से 511 के बीच में भी सर्विस VPN बना सकते हो, और 513 से लेके 65,530 तक भी आप सर्विस VPN बना सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो सर्विस VPN बेसिकली क्या है कि आप जितनी भी लोकेशंस क्रिएट करोगे या कनेक्ट करोगे, तो जितने ज्यादा आप VPN कनेक्ट करोगे, लाइक यू कैन क्रिएट मोर VPNs. But 0 and 512 is already reserved for the connectivity. 512 for management and 0 to have connectivity with the like your transport, जो भी over the internet जो भी connectivity हो रही है यार आपकी। ठीक है, या उज्जवल? मेरा उज्जवल भाई, अतुल भाई, क्वेश्चन ये था कि एज डिवाइस पे क्या हमें सेम VLAN रखना पड़ेगा तभी वो कम्युनिकेट कर पाएगा, या कुछ और? सॉरी, नहीं, आप आपकी चॉइस है। सी, ये L3 कनेक्टिविटी है, ये L2 कनेक्टिविटी नहीं है, तो VLAN का तो कॉन्सेप्ट है नहीं यहाँ पर। ओके, तो सॉरी आप VPN, एग्री कर रहे हो ना? सॉरी VPN 10 अगर VPN में अगर बना रहा हूँ। हाँ, वो होगा ही होगा। जैसे आपने MPLS में RD/RT पढ़ा है, हाँ जी, राइट? अगर एक चीज, अगर VH1 है, जैसे मान लो दिल्ली लोकेशन है और एक मुंबई लोकेशन है, अगर आपने दिल्ली के रूट्स मुंबई पे ट्रांसफर करने हैं या ठीक है, मुंबई के इम्पोर्ट दिल्ली एक्सपोर्ट हो पे, तो गया। वो सेम VPN में होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, राइट उज्जवल? बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ ठीक है, कंटिन्यू। हाँ तो तो सॉरी, माय क्वेश्चन इज, जैसे मल्टीपल VPN सर्विस VPN हम बनाते हैं 10, 20, 30 या जो भी है, सो दोज आर बेसिकली LAN सेगमेंट्स, राइट? करेक्ट करेक्ट, वी एज रूटर पे सपोज हम मल्टीपल क्यों बनाएंगे? आई मीन कोई एग्जांपल आप फॉर मल्टीपल इसलिए बना सकते हैं कि जैसे आपकी साइट है, ठीक है, तो आपकी आपकी बहुत डिफरेंट टाइप की एक बड़ी साइट हो सकती है, ठीक है, डाटा सेंटर भी हो सकता है। तो उस पे मान लीजिए आपका एक सेगमेंट है जिसपे आप सिर्फ आपकी एंटरप्राइज एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए आप लोग क्या करेंगे, वहां पे आपका एक गेटवे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच रख देंगे, या नेक्सस का, अगर बहुत बड़ा साइट है तो नेक्सस रख देंगे, या फिर आप सिस्को 6500 रख देंगे, ठीक है। तो वो हो गया आपका एंटरप्राइज। तो ये एक आप उस अलग VPN में रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक आपका हो सकता है कि आपको कुछ जैसे पेमेंट गेटवेज रखने हैं, आप चाहेंगे कि आपको चाहिए ना आपका पेमेंट गेटवे का जो ट्रैफिक है वो कभी एंटरप्राइज के साथ मिक्स ना करे, क्योंकि ये सिक्योर ट्रैफिक है, राइट। तो आपको भी PCI कंप्लायंट एप्लीकेशन रहेंगी जो कि आपके इस साइड में है, तो आप उसके लिए ऑब्वियसली एक डिफरेंट VPN क्रिएट करेंगे, राइट। उसको आप मिक्स नहीं करेंगे आपके लोग एंटरप्राइज ट्रैफिक के साथ में। तो उस केस में आप दूसरा VPN डिफाइन करेंगे, आपके बेसिस के ऊपर है। और फिर तीसरा हो सकता है कि आपके यूजर्स हैं जो कि वाईफाई यूजर्स हैं जिनको सिर्फ इंटरनेट एक्सेस चाहिए, जैसे कि बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए आते हैं, या फिर मतलब एज ए इंटर्न आते हैं जिनको नेटवर्क का एक्सेस नहीं चाहिए होता है, बट इंटरनेट का एक्सेस चाहिए होता है कुछ करने के लिए, राइट, या फिर VPN कनेक्ट करने के लिए। तो आप उनको डायरेक्टली अपने नेटवर्क पे कनेक्टिविटी नहीं देते, आप उनको गेस्ट वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि गेस्ट वाईफाई का जो ट्रैफिक है आप क्या करते हैं, लोकली एग्जिट करवा देते हैं इंटरनेट के साथ। तो लेकिन टोपोलॉजी बेसिस पे क्या है कि इनका जो ट्रैफिक पैटर्न है वो डिफरेंट हो गया ना। आपका जो भी PCI ट्रैफिक है, जो भी जैसे पेमेंट का ट्रैफिक है, या फिर वो कभी भी इस ट्रैफिक के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, उसका सेपरेट ही VPN रहेगा
वो डाटा सेंटर पे जा करके अलग से एग्जिट पाथ लेगा। तो आपका जो ट्रैफिक है वो पूरा आपने डेडिकेटेड उसको एक पाथ दिया है, तो वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड डेडिकेटेड ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट वीपीएन यूज कर सकते हैं सर्विसेज। आई होप यू आप हाँ अब समझा। सो दैट मीन्स जब कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा तो इट्स लाइक दे हैव डिफाइंड दैट VPN 100 इज फॉर दिस, VPN 200 इज करेक्ट फॉर करेक्ट दिस। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, लाइक अगर कई बार हमारे मल्टी कस्टमर भी हो सकते हैं, मल्टी टेनेंट जिसे बोलते हैं, लाइक अगर कोई एक सर्विस प्रोवाइडर है, लाइक मान लो कि नेटवर्किंग्स SD-WAN डिप्लॉय करती है, तो एक कस्टमर हमारा नेस्ले आ गया, दूसरा कैडबरी आ गया, तीसरा कोई और कस्टमर आ गया, बट हम एक ही वी मैनेजर से मल्टीपल कस्टमर्स को कनेक्टिविटी दे सकते हैं। तो ये इस विप्टेला के अंदर मल्टी टेनेंट का भी एक ऑप्शन है कि आप अपने मल्टीपल कस्टमर्स को, लाइक अगर मान लो मैं एक कंपनी में हूँ, मुझे रिटेल कस्टमर है, मेरा कोई टेक्नोलॉजी कस्टमर है, बैंकिंग कस्टमर है, मैन्युफैक्चरर कस्टमर्स हैं, तो उन मल्टीपल कस्टमर्स को या मल्टीपल क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उसमें भी हम डिफरेंट डिफरेंट VPN यूज कर सकते हैं। मतलब VRF बनाने की मैं हाँ, काइंड अगर ऑफ जैसे सर्विस प्रोवाइडर हमारा VRF बनाता है ना हर हाँ कस्टमर हाँ के लिए, हर कस्टमर तो के लिए, वैसे तो वो बनाने हाँ की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो वी मैनेजर के ऊपर हम VPN मल्टी VPN वगैरह बना के अलग अलग कस्टमर्स को मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो इन दैट केस आई मीन जैसे आपने बताया अभी 3 अलग अलग कस्टमर हैं, तो तीनों सेम वी मैनेजर और सेम वी स्मार्ट एंड इवन वी बॉन्ड, दे ऑल आर शेयरिंग बिटवीन 3 कस्टमर्स, इज इट? नहीं, हाँ, तो कस्टमर के सेम पास तो रहेगा। VEdge होगा ना, जो कंट्रोल नहीं VH नहीं, VH नहीं, उसके सिवाय जो 3 हैं, वी मैनेज, वी स्मार्ट एंड वी बॉन्ड। कस्टमर में वो वाला फिर तो पूरा कंपनी खड़ा हो गया ना। मैं ये हाँ कह रहा हूँ कि नेटवर्किंग्स के पास वी मैनेजर है, वी स्मार्ट है, वी बॉन्ड है, बट मैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ कनेक्टिविटी चाहती हैं, जैसे अभी एग्जैक्टली, कि उज्ज्वल। हमारे पास वी एज रूटर है, आप उसको मैनेज हाँ, कनेक्ट करो, ठीक है ना? यस। हाँ, तो इन दैट केस मैं वही कह रहा हूँ कि मल्टीपल, अब तीनों अलग अलग कस्टमर हैं, तो ऑब्वियसली तीनों का सर ये जो आप शेयर। प्रिनल, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं ये बोल रहा था कि अभी वी स्मार्ट, वी मैनेज और वी बॉन्ड, अभी आप सोच रहे हो कि सारे कस्टमर ने खुद के लगाने, ऐसा नहीं है। आप अगर मान लो एक नेटवर्किंग SD-WAN सर्विस प्रोवाइडर है, हम ये बोल रहे हैं आपको प्रिनल, आपकी 4 ब्रांचेस को हम जोड़ देंगे, बस आपको 4 VEdge का पैसा देना है। आर यू गेटिंग? यस, मैं भी वी वही कह रहा मैनेज, था। वी स्मार्ट, एवरीथिंग हम मैनेज करेंगे, आपको सिर्फ 4 VEdge डिवाइसेस अपनी लोकेशन पे लगाने हैं। ऐसी 4 मैंने सरबजीत को दे दिया, 4 ऐसी मैंने और रिवान को दे दिया, तो ऐसे लाइक मैंने तीनों कस्टमर को अपने वी बॉन्ड, वी मैनेजर और वी स्मार्ट से मैं तीनों कस्टमर की लोकेशंस को भी मैनेज कर रहा हूँ। दैट इज मल्टी टेनेंट। कि मैं आपको मैं एक्सेस नहीं दूंगा वी मैनेजर का, मैं आपको वी बॉन्ड का एक्सेस नहीं दूंगा, सारा जो कंट्रोल प्लेन है वो सारा मैं कंट्रोल करूंगा। हाँ, वो समझ गया मैं, मल्टीपल टेनेंट्स हो गए, उनका ट्रैफिक अलग हाँ, से ही रहेगा। बट मल्टी और टेनेंट में आप ये सोच रहे हैं कि वी बॉन्ड या वी स्मार्ट, वी मैनेज आपको मैनेज करना है, नहीं, वो हम मैनेज करेंगे, तभी मल्टी टेनेंसी होती है। फिर तो राइट, अलग अलग हो गया ना फिर सब। उज्जवल मैं सही बोल रहा हूँ ना? बता दिया करो यार। करेक्ट। हाँ नहीं, एक्चुअल में क्या है कि वो आपका जो डेप्लॉयमेंट है वो वी मैनेज के साइड से मल्टी टेनेंट है, बट यहाँ पे जो वी एज है वो डेडिकेटेड रहेंगे कस्टमर के लिए। हाँ VH तो कस्टमर का डेडिकेटेड रहेगा, बिकॉज दैट इज करेक्ट करेक्ट कस्टमर प्रीमाइस राउटर, राइट? तो वो तो वहीं करेक्ट रहेगा। करेक्ट। उनको जस्ट एक कनेक्टिविटी देना, MPLS है या चाहे हाँ, उनको इंटरनेट रूट से। रिफ्लेक्ट करके चाहिए और उनकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करने के लिए तो वो मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट में जा सकते हैं, जैसे दूसरी में। सही है। MPLS के कंसेप्ट के हिसाब से मल्टीपल VRF है, डिफरेंट VRF फॉर, आई मीन सेपरेट VRF फॉर पर कस्टमर, एंड दैट्स हाउ इट्स लाइक सेपरेट VPN, राइट? फॉर करेक्ट करेक्ट। SD-WAN तो या अभी VH हम, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि ये सब तो VPN ही है। अगर आप देखा जाए, चाहे VPN 0 है या VPN 10 है या 20 है तो ये VPN ही, राइट? डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करें, इनका आपस में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है अभी अभी, क्योंकि डिफरेंट VPN है, राइट? यहाँ पे लोकल साइट पे तो सारे सेपरेट ही हैं, ठीक है? तो वी स्मार्ट क्या कर रहा है बेसिकली यहाँ पे, वी स्मार्ट के लिए VPN 0 भी एक VPN है, VPN 10 भी VPN है, VPN 20 भी VPN, ठीक है?
तो वी स्मार्ट क्या कर रहा है कि वी स्मार्ट और हाँ, तो मैंने बस जैसे बताया कि यहाँ पे एक टनल, इनके बीच में टनल रहती है, TLS या फिर DTLS टनल रहती है। तो उस टनल के ऊपर जो है एक प्रोटोकॉल रन करते हैं ये लोग, इसको बोलते हैं OMP प्रोटोकॉल, ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब इसको ओवरले क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओवरले जाती है, क्योंकि ये लेयर 3 कनेक्टिविटी हो गई वी स्मार्ट और VH के बीच में, राइट। तो और इस लेयर 3 कनेक्टिविटी के ऊपर इन्होंने टनल बना दिया, TTLS टनल। तो ये जो OMP प्रोटोकॉल है वो इस ओवरले के ऊपर रन कर रही है, इस टनल के अंदर एनक्रिप्टेड है, ठीक है। तो ये OMP टनल कंफ्यूज मत करना, BGP की जैसी है, बट ये विप्टेला प्रोप्राइटरी है, और तो इसको जो है कहीं और यूज नहीं करते। तो ये सिर्फ ये क्या डाउनलिंक वाइज है ना? डाउनलिंक है, डाउनलिंक मैं समझा नहीं। एक बार दोबारा से रिपीट कीजिए, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? OMP प्रोटोकॉल कैसे काम कुछ करता है? नहीं, OMP जो है वो आपके V स्मार्ट्स और VH के बीच में काम करता है, या फिर V स्मार्ट्स और V स्मार्ट्स के बीच में। अगर ये ओवरले मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, तो ये BGP क्या है? BGP अंडर मैनेजमेंट भी होना चाहिए फिर? नहीं, BGP कैसे काम करता है? BGP क्या करता है, आपके BGP को रन करने के लिए दो राउटर के बीच में L3 रीचेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। आपको पिंग करना चाहिए, इसका मतलब अंडरलाइन आपका OSPF भी हो सकता है, आपकी रीचेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो OSPF हो सकता है, EIGRP भी हो सकता है, स्टैटिक राउट्स भी हो सकते हैं, राइट। तो ये तो आपकी अंडरलाइन राउटिंग हो गई। BGP बेसिकली क्या कर रहा है, वो ओवरले राउटिंग दे रहा है ना। ओके आपके इन दो पॉइंट्स के बीच में रीचेबिलिटी आपकी राउटिंग ऑलरेडी है, कर रही है, और BGP क्या कर रही है, राउट ट्रांसफर कर रही है, करेक्ट, ओवरले का काम करे। इसी तरीके से BGP ही मानो इसको ऑलमोस्ट, बट इसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं, और सिमिलरली जैसे BGP काम करती है वैसे ही OMP काम करती है, ठीक है जी। तो वो क्या करती है कि अब आपको पता ही होगा कि जो हमारा MPLS सेटअप रहता है उसमें क्या होता है, हम MPBGP यूज करते हैं, राइट। MPBGP क्या करती है, बेसिकली हर VPN के रूट्स जो है एक VPN से उठा करके दूसरे VPN पे उसी VPN में ड्रॉप करती है, तो ये भी BGP ही कर रही है ना। सिमिलरली यही काम यहाँ पे OMP कर रही है। OMP क्या कर रही है कि आपके VPN 0 के रूट्स उठाएगी, मतलब यहाँ VPN 0 में क्या है, आपका TLOC है, ठीक है। अब क्योंकि आप बोलोगे कि अरे ये तो लेकिन प्रॉपर IP नहीं है, तो आप MPBGP में भी देखोगे तो वो आपका RT के ऊपर काम करती है, जो कि आप प्रॉपर IP फॉर्मेट नहीं रहती, एक्सटेंसिबल एट्रीब्यूट यूज करती है, राइट। सिमिलरली आपकी जो OMP है वो एक्सटेंसिबल एट्रीब्यूट यूज करती है और आपके TLOCs को एक्सचेंज कर देती है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये का TLOC तो एक्सचेंज करती है VPN 0 के लिए, ओके, और ये जो VPN 10 के रूट्स हैं ये सब इनको भी एक्सचेंज करती है। तो ये जो राउट्स होते हैं इनको बोलते हैं राउट एक्सचेंज, और TLOC एक्सचेंज कर रही है उसको बोलते हैं TLOC एक्सचेंज, ठीक है। तो V स्मार्ट आपका दो काम कर रहा है, वो आपके TLOCs लर्न कर रहा है और आप राउट्स लर्न कर रहा है। राउट्स जब हम बोलेंगे सर्विस VPN राउट्स, बिल्कुल। जब हम TLOC राउट्स बोलेंगे तब हम बोलेंगे VPN 0 राउट। तो इसका मतलब आपके V स्मार्ट को दोनों चीजें पता है, आपके जो VPN 0 के राउट्स हैं वो भी पता है, जो आपके TLOCs हैं, और जैसे हमने देखा क्योंकि TLOC जो है सिस्टम IP और सर्किट कलर से आइडेंटिफाई होते हैं, और हर एक राउटर का सिस्टम IP यूनिक रहेगा, तो हर एक TLOC है वो यूनिक हो गया, करेक्ट। इसी तरीके से जब हम VPN से रूट्स लर्न करेंगे वो भी सेम डिवाइस पे पहुंचेंगे V स्मार्ट पे। अब V स्मार्ट पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कौन कौन सी साइट्स को कम्युनिकेट करवाना है। जैसे हमने यहाँ से ये TLOC एक्सचेंज किया, यहाँ हमने रिसीव किया, यहाँ से भी हमने एक्सचेंज किया और यहाँ पे रिसीव किया। अगर हम सिर्फ यहाँ से MPLS TLOC ट्रांसफर करते हैं नीचे की तरफ, और इसका भी MPLS TLOC इधर एक्सचेंज करते हैं, तो हमारी जो टनल बनेगी वो MPLS के ऊपर बन जाएगी, एंड टू एंड टनल, क्योंकि MPLS की रीचेबिलिटी एक दूसरे को मिल गई, क्योंकि ये ऑलरेडी MPLS पे कनेक्टेड है, राइट, दोनों साइड्स।
अब इनके नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रीच एक दूसरे के साथ ट्रांसफर हो गई तो ये टनल बना सकते हैं आपस में, करेक्ट। हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया टनल को कौन सी बनानी है, आईपीसेक टनल बनानी है। और हम लोग यहाँ पे जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो हम ये जो की है ये की जनरेट करता है ऑटोमेटिकली वीस्मार्ट, तो ये की भी एक्सचेंज कर देगा अपने आप ही कि आपको इस टनल को बनाने के लिए कौन सी की चाहिए होगी, राइट, आईपीसेक के लिए चाहिए दोनों को। तो एमपीएलएस के ऊपर आपकी टनल बन जाएगी, आप एंड टू एंड। ठीक है, जब वीएज पे आईपीसेक टनल क्रिएट हो गई एज डिवाइसेस पे, तो वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू, डाटा एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, ट्रैफिक एक्सचेंज करना शुरू कर देगा। उस टाइम वीस्मार्ट की जरूरत आई थिंक कम रहेगी, सिर्फ राउट के रिलेटेड ही रहेगी, राइट? करेक्ट। तो ये टनल बन गई और आपने डिफाइन कर दिया कि इन साइड्स, इस साइड से कौन से राउट यहाँ पे जाने चाहिए और इस साइड से कौन से राउट यहाँ पे जाने चाहिए। दोनों साइड्स को पता है कि हमको किन किन राउट्स के बीच में कम्युनिकेशन रखना है। टनल फॉर्म हो गई और राउट्स भी पता चल गए एक दूसरे के। तो अभी यहाँ पे वीस्मार्ट का रोल एक तरीके से खत्म हो जाता है। बट आपने देखा कि हमने टीलॉग सिर्फ एमपीएलएस का एक्सचेंज किया, इसके लिए टनल सिर्फ एमपीएलएस के ऊपर बनी। हाँ, अगर हम लोग इंटरनेट का टीलॉग भी एक्सचेंज करेंगे तो मैंने बोला कि हर राउटर पे 2 सर्किट है ना, एमपीएलएस और इंटरनेट। तो जो वीस्मार्ट के पास टीलॉग जाएगा वो दोनों टीलॉग जाएंगे, इंटरनेट के भी जाएंगे दोनों साइड से, इंटरनेट और एमपीएलएस का भी जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने हर साइड से दूसरी साइड को दोनों टीलॉग ट्रांसफर कर दिए, एमपीएलएस भी कर दिया और इंटरनेट भी कर दिया, तो दोनों को एक दूसरे के इंटरनेट के ऊपर की रीचेबिलिटी भी पता चल गई और एमपीएलएस भी पता चल गई, नेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये 2 टनल फॉर्म कर सकते हैं। ओके, एमपीएलएस के ऊपर भी टनल फॉर्म कर सकते हैं और इंटरनेट के ऊपर भी टनल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गई, 2 टनल हो गई और हम अब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टनल पे हमको कौन सा ट्रैफिक कैरी करना है। तो इतनी हैवी ग्रैन्युलरिटी भी हमारे पास आ जाती है, वो हम डिटेल में कवर करेंगे, बट अभी आपको आई थिंक समझ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नेक्स्ट ऑफ कैसे वो टनल फॉर्म करते हैं। और ये जो की एक्सचेंज होती है वो की भी वीस्मार्ट एक्सचेंज करता है अपने आप ही, ये टनल को हेल्प बनाने में हेल्प करता है। बिल्कुल, वो तो फीचर है ना आईपीसेक का। करेक्ट। उज्जवल सर, मेरा एक क्वेश्चन है, ये VPN 0 और VPN 512, ये मतलब 0 से लेके 512 रिजर्व है या 0 और 512 ये दोनों ही रिजर्व है? दो VPN, जैसे अतुल सर ने बताया, VPN 0 और VPN 512 आर रिजर्व, क्योंकि VPN 0 ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है और VPN 512 जो है वो आपका मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। बाकी आप बीच के VPN कोई भी किसी पर्पस, मतलब आपकी सर्विस VPN में यूज कर सकते हैं। ओके, और एक चीज पूछना था, जैसे वी मैनेजमेंट होता है, वीस्मार्ट में कंट्रोल प्लेन होता है, कंट्रोल प्लेनिंग मतलब राउटिंग वगैरह प्रोटोकॉल्स, और वीएज में डेटा प्लेन्स हो गए, वी बॉन्ड में क्या होता है? मैंने अभी लेक्चर के मतलब पहले ही कवर किया, वी बॉन्ड का क्या रहता है। उसमें आपका बेसिकली कनेक्टिविटी रहती है और वो सिर्फ आपको ऑथेंटिकेशन में हेल्प करता है। ओके, सॉरी मैं मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो अच्छा, मैंने, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, वो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया था लेक्चर में वी बॉन्ड का। मतलब शॉर्ट में क्या है, वी बॉन्ड किसके लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए क्या? जी, आपकी जो भी नई डिवाइस ऑन बोर्ड कर रही है SD-WAN नेटवर्क में, डोमेन में, तो वो डिवाइस डायरेक्टली नेटवर्क में नहीं आ सकती, डायरेक्टली वीस्मार्ट या वी मैनेज के साथ टनल्स फॉर्म नहीं कर सकती। पहले उनको वी बॉन्ड से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है। वी बॉन्ड से ऑथेंटिकेट होंगी तभी वो लोग वी मैनेज और वी स्मार्ट के साथ लिंक कर पाएंगे। ओके, बाकी डिटेल में कवर कर किया हुआ है पहले लेक्चर में, मतलब वीडियो में, वो रिकॉर्डिंग देख कर सकते। ओके, मैं देख लेता हूँ, कुछ डाउट रहा तो बात। गाइस, एक तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो ना, कुछ डाउट होता है तो आई हैव शेयर्ड लिंक यस्टरडे आल्सो, because if there is a delay in class or something, so request everyone to join this group, okay? Because it's not a big batch, so we can easily manage on WhatsApp also. ठीक है उज्जवल, so if you want to continue, like recording pause कर सकते हैं, doubt